You are learning something, alhamdulillah, of Sari and fifth one سید is القدیر. very good, very good. Come on. ابھی ایک ایک چیز کو ہم لے کے دیکھیں گے. یکادو میں روٹ ورڈ بہت اہم ہوتا ہے، اسی سے ماضی، مضارع، پرسن ساری چیزوں کا ہم کو پتہ چلتا ہے. یکادو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ کادا ہے. اور یکادو اس کا مضارع ہے، اور اس میں پرسن کیا ہے کادا کا؟ تھرڈ پرسن. تھرڈ پرسن ہی. کیا معنی ہے کادا کے؟ اٹس اباؤٹ ٹو. اس کے معنی ہے اباؤٹ ٹو. جیسے اگر آپ گھر سے نکل رہے ہیں، کوئی دوست آ گیا ہے، کوئی ویسے وقت پہ تو ہم بولتے ہیں کتو ذاہبن. کتو ذاہبن مانے I was about to leave. آپ آگے، میں گھر سے جا ہی رہا تھا بس. تو کوئی بھی چیز ان قریب ہونے والی ہے تو کادا. یہ مضارع ہے کہ شاید ان قریب ایسا ہو. اب یہ برق ہے، اس کو تشبیہ دیے تھے پچھلی آیتوں میں. ہم کس سے تشبیہ دیے تھے؟ مثال الگ چیز ہے، تمثیل الگ چیز ہے، تشبیہ الگ چیز ہے. برق کو کس سے دیے تھے ڈاکٹر صاحب؟ اچھی بارش کی اچھی چیزوں سے. نہیں، قرآن سے جو ہم اس کو کمپیر، مثال کو کمپیر کر رہے ہیں، لوگوں کو اس سے کمپیر کر رہے ہیں. تو اس میں جو ناراضگی کی باتیں ہیں، جو گرج چمک کی باتیں ہیں، وہ قرآن میں سخت باتیں. برق بجلی ہے، اور صاعقہ جو ہے وہ بڑی سخت بات ہے، کڑک جو ہے نا. تو وہ بجلی جو روشنی ہے. اب یختفو ہے، اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سارے بہت سے ہیں جو ان کو روٹ ورڈ معلوم ہے. قطفہ کے معنی کیا ہے؟ اچک لینا، چھین لینا. ابصارہم کیا ہے؟ بینائی، آنکھیں نہیں. آنکھوں کو آن یا عین کہیں گے، وہ آنکھیں ہیں. اور بصرہ، جی ان کی بصارت. آنکھیں نہیں چھینی جاتی بلکہ روشنائی، آنکھوں کی روشنی. دا پاور ٹو سی. ریکارڈ کا بٹن دوبارہ کلک کر لیجیے پلیز. میں اچھا شاید وہ آپ کا کام ہے تو میں بھول گیا، یہی نہیں تھا. میں مور میں اسٹاپ ریکارڈنگ بتا رہا ہے. بس پھر صحیح ہے، پھر ہو رہا ہوگا آلریڈی. دین اٹس فائن. جی ہاں، یہ ریکارڈ ہو رہا ہے. میں سوچ میں کر رہا تھا. جی اگر ہو رہا ہے ریکارڈ تو پھر ٹھیک ہے، پھر چھوڑ دیجیے. سوری فار دیٹ. چلیے، ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے. پاز ریکارڈنگ اسٹاپ. چلیے، اب یہ ابصارہم جو ہے ان کی بینائی یا ان کی بصارت ہوگی. اب اتنے پورے ٹکڑے کے کیسے معنی نکالیں گے آپ؟ اب بجلی جو ہے، یہاں بجلی سے کوئی ہم کو لینا دینا نہیں ہے. یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں. اب وہ مثال جو ہے تشبیہ دے رہے ہیں کہ قرآن میں جو گائیڈنس والی باتیں ہیں، جو ان کو سمجھانے والی باتیں ہیں، روشنی پیدا کرنے والی باتیں ہیں، وہ جب ان کی مرضی کے خلاف یا ان کی شریعت کے خلاف ان کا دل ادھر نہیں جاتا، تو اس سے بہت عنقریب ممکن ہے کہ ان کے وہ جو روشنی، جو چیز دیکھ رہے ہیں، وہ سلب ہو جائے گی. وہ چیز ان کو دکھائی نہیں دے گی. بیکاز جب تک انٹینشن نہ ہو انسان کی، جب تک کہ مرضی نہ ہو کہ کسی چیز کو دیکھے، سمجھے اور اس پہ عمل کرے، اس میں بھلائی ڈھونڈے، اس وقت تک جو ہے وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی. یہ جو مثال آ رہی ہے یہاں، برق، یہ عام برق نہیں ہے، ایک انسین ہے جو دلوں کی کیفیت ہے. اس کو سین سے مثال دے رہے ہیں، SEEN، کہ جو چیز ہم دیکھتے ہیں. تو اگر برق چمکتی ہے، روشنی ہوتی ہے، کوئی رہنمائی ہوتی ہے، کوئی اچھی بات ہوتی ہے، لیکن مزاجوں کی وجہ سے
अभी हम इसके और मजीद जब पूरा आयतों की तफसील करेंगे तो इंशाल्लाह उसमें और भी बातें करेंगे। तो एक टुकड़ा हो गया है कि अनकरीब उनकी ये लापरवाही की वजह से या अदम दिलचस्पी की वजह से मुमकिन है कि उनकी रोशनी या फिर उनकी बसारत सल्ब हो जाए। अब उसके बाद उनकी जो कैफियत बता रहे हैं, कुल्लमा के क्या मैंने दूसरा टुकड़ा बोलो नहीं, कुल्लमा एक फ्रेज है, उसके मायने वेन एवर, जब कभी, इससे सिचुएशन, इससे टाइम फ्रेज। ये आधा कल भी आया था, जिया जिसे कहते हैं, रोशनी, चमक। जब कोई चमक उनके लिए आती है जो उनके मिजाज के मुताबिक भी है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं ना। आज हम इसको थोड़ा सा माहौल के ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर भी तफसीर करके देखेंगे, जिसका हमको हक़ पूरा मिलता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला मायने समझने में वो किसी मुफस्सिर को रिफ़र करना ज़रूरी है, लेकिन तदब्बुर के लिए आज के माहौल में अगर हम किसी चीज़ को गौर करें, अपना मुहासबा इन आयतों के नज़र में रख के करें तो उसकी इजाज़त है, उसकी इजाज़त है। तो आज का मोमिन या मैं भी हूँ, तो जो मेरी मर्जी की बात है, आसानी है, वो तो कर लूँगा। लेकिन जहाँ पर कोई मुश्किल बात आ गई या ऐसी चीज़ है जो मेरी मर्जी के खिलाफ जा रही है, सो देयर आई विल ट्राई टू इग्नोर इट। आप थोड़ा गौर करके देख लीजिए, मैं हर बात खुली नहीं कर सकता। आप खुद गौर करके देख लीजिए कि बहुत इंडिया में हैं, यहाँ हैं, हर जगह हैं कि कोई चीज़ उनकी मर्जी के खिलाफ जा रही है। उसको तो बाद में देखेंगे, फिलहाल नमाज पढ़ लेना है, पढ़ लेंगे। रमजान है तो पूरा जोश दिखा देंगे। रोज़मर्रा के मामलात में हराम हलाल के डिफरेंस में मोस्ट ऑफ अस, वेयर आर वी, वादों में, डीलिंग्स में, वहाँ पर जो चीज़ पसंद नहीं आती, वी कीप इट एट अवर बैक, मोस्ट ऑफ अस। इसको बाद में देखेंगे, ये अभी हो नहीं सकता। हम अमेरिका में, हम इंडिया में, वो दारुल कुफ्र है, यहाँ सब चलता है। अस्तगफिरुल्लाह, नौज़ुबिल्लाह। अभी और थोड़ा सा आज के 20 आयतें बड़ी अहम होंगी दो लिहाज से, एक तफसीरी भी होगी, एक हालात हाज़िरा पे, और उसका जवाब भी मेरे पास है कि वो क्यों करेंगे हम। चलिए, तो अब यहाँ पर एक मिसाल उनकी ये दी जा रही है कि जब भी उनकी मर्जी की कोई बात कुरान में आती है, या फिर किसी नबी के, पूरा जितना इसको फैलाओ, पहले तो जमाना है, सुनते तो दिले आशिक, पहले तो जमाना। पूरे अंबिया की बात ऐसी थी, जहाँ उनको कोई चीज पसंद आई, ये तो ठीक है, ये तो हम करते ही रहते हैं। लेकिन ये बुतों को छोड़ दो, आबादात के तरीके को छोड़ दो, ये नहीं होगा। कुरैश भी यही कह रहे थे, खाली अल्लाह को मानो कहते हैं, अभी मान लेते हैं, कोई बड़ी बात ही नहीं, हम तो पहले से ही मानते हैं अल्लाह। लेकिन सिर्फ अल्लाह को मानो, ये बात थोड़ा हमारे समझ में नहीं आती। अस्तगफिरुल्लाह। ठीक है, अगर इस्लाम यहूदियों के सामने जो पेश किया जा रहा था, अगर ये कहता कि चाहो तो उस तौरात की शरीयत पे भी चल लो, चाहे तो इस पे भी चल लो, जो है सभी लोग उसके ऊपर राजी हो जाते। इसमें जो अच्छा दिखा ले लो, उसमें जो अच्छा दिखा ले लो। इट वॉज वेरी इजी। लेकिन वो शरीयत मनसूख हो गई। उदखिलू फिस्सल्मी काफा, जब ये कह दिया गया कि अब इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल होना है और यही शरीयत लागू होने वाली है, कोई और शरीयत नहीं होगी। तो अब ये जब थोड़ी सी रोशनी कभी हो जाती है, मशऊ के मायने चलने के हैं, चलने के हैं। और जी इसमें क्या है, प्लूरल है या सिंगुलर है?
वाव अलिफ आने से उसमें चल लिए, रोशनी में थोड़ी दूर चल लिए, फिर उसके बाद ये दूसरी बात होगी। ये दोनों को आप मिलाएंगे तो क्या होगा, जब कुरान में उनकी पसंद की कोई चीज होती है चल पड़ते हैं, और फिर उसके बाद इज़ा अज़लमा अलैहिम, नहीं कोई अंधेरा, अब वो बात समझ में नहीं आ रही, आखिरत क्या है समझ में नहीं आ रही है, ये अमल क्यों करना है समझ में नहीं आ रहा है, लोगों को धोखा क्यों देना है समझ में नहीं आ रहा है, चोरी क्यों करना है समझ में नहीं आ रहा है, वादा करके पूरा करना क्यों करना है समझ में नहीं आ रहा है, which is called darkness। और जब कोई चीज समझ में नहीं आती है, उसके ऊपर गौर व फिक्र भी नहीं करते किसके भले के लिए है, इससे अल्लाह को कोई फायदा पहुंच रहा है या इंसान से इंसान को फायदा पहुंच रहा है। वइज़ा अज़लमा, हाँ, अलैहिम, उनके, जब अंधेरा समझ में क्लियर हो रहा है ना, बिल्कुल। कामू, कामू खामा से है, फिर इसमें प्लूरल है या सिंगुलर है, प्लूरल है, और वो खड़े हो गए, अब आगे नहीं बढ़ते, अब उसको एक्सेप्ट नहीं करते, तो रुक गए। अब उसके बाद वो लौ शाअ अल्लाहु, हाँ ठीक। अब इससे पहले की आयत में आपको याद होगा कि उसमें था कि सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजून, उनके बारे में एक ऐसे कट्टर भी थे कि जिनको ना सही बात भी समझ में आ रही थी ना गलत बात, कोई चीज समझ में नहीं आ रही थी, इनाद, हसद और जो है बॉक्स, ये उनके सीनों में भरा हुआ था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल से क्यों नहीं है, बनी इस्माइल से क्यों हैं। और जब मूसा अलैहिस्सलाम एक शरीयत ला चुके थे तो उस शरीयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला तब्दीली क्यों फरमा रहे हैं, कट्टरपन। तो उनके बारे में कह दिए थे सुम्मुन बुकमुन उम्युन। यहाँ पर नरमी है, यहाँ पर नरमी है, क्या है वो, लौ शाअ अल्लाहु लिज़हबा बिसमइहिम व अब्सारिहिम, अगर अल्लाह चाहे, ये तो अभी बीच बीच में है, दर उधर उधर, उनको तौफीक भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है, लेकिन जो पल्ला भारी होगा, इनाद का पल्ला अगर भारी होगा, मुखालिफत का पल्ला अगर भारी होगा, फिर बस लौ शाअ अल्लाहु लज़हबा, ज़हबा क्या है, ये कई बार इसी में पढ़ चुके हैं, और ये ला आ जाने से क्या हो जाएगा, नहीं ये वो नहीं होता, ताज़ीमी में फिर नून सकीला भी आना पड़ता है, वो आना पड़ता, लज़हबन ना हुआ तो ताकीदी होता, लेकिन यहाँ पर शायद, शायद के मैंने आते हैं, शायद ले जाए, अल्लाह उसका फेल फाइल है, ज़हबा जो है उसका फेल है कि अल्लाह ले जाए, किन चीज को ले जाए, जब माजी है तो अल्लाह छीन लेता, छीन लेता, वेरी गुड, अल्लाह चाहता तो छीन लेता, बिसमइहिम, किसको, समीम बसरत के, उनके समात को, वाबसारिहिम, लेकिन अल्लाह उनको एक मौका दे रहे हैं, एक ढील दे रहे हैं कि इसके अंदर वो गौर व फिक्र करें। और कई ऐसे थे जो दिल में कुछ ईमान था, वो मक्के में भी थे, मदीने में भी थे, बाद में धीरे धीरे लाए, है ना, कि हज़रत इतने बड़े जलीलुल क़द्र साहबी खालिद बिन वलीद, वो कब तक मुखालिफ इस्लाम, और ऐसे भी जबरदस्त मुखालिफ इस्लाम कब तक रहे, काफी अर्से तक रहे, इसके बाद कौन सा, कब काफी अर्सा वाले तो कोई नहीं, फतेह मक्का के नहीं, तो अबू सुफियान वगैरह वो ग्रुप अलग है। ये सुलह हुदैबिया तक, 6 नबवी तक इन्होंने ओहद में वो हंगामा मचाया था, और पूरे
बेशर इस्लाम दुश्मनों में से थे, लेकिन जब तौफीक हुई तो फिर ऐसे जलील उल क़द्र साहब भी और फिर ऐसी जंगें की। चलिए, तो फिर जो है अल्लाह चाहता तो उनकी समात और उनकी बसारत को छीन लेता। और इसका आखिरी टुकड़ा क्या है? ये देखिए ऐसे जुमले होते हैं, इन्ना जो है ये मुशब्बा बिल फेल है, यानी ये मोटे मोटे अल्फाज से लोग घबराते हैं, लेकिन फेल का काम कर रहा है। उसका एक इस्म है अल्लाह। अल्लाह की खबर दी जा रही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं। तो ये इन्ना है, इन्ना का इस्म अल्लाह है और ये हमेशा फतह के साथ होता है। इसकी आखिरी हर्फ के ऊपर फतह होता है, इन्ना का इस्म। और इस इस्म की खबर है कि अला कुल्ली शैइन क़दीर, अल्लाह हर चीज के ऊपर कादिर है। क्लियर हो गई है? चलिए, आज हस्बे वादा 20 आयतों का रिवीजन करना है। हाँ, 2-3 आयतें कर ली थी कल, ठीक है, आपने रिपीट नहीं किया था इसलिए हो गई, मतलब 2 ही होनी थी। जो चाहे बोल लो, मेरे से क्या करना है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, सूरह बकरा की बिल्कुल इब्तदाई 20 आयतें हैं और जिसमें कई तफासिर पढ़ने के बाद एक बहुत सी चीज़ें पसंद आई, लेकिन हज़रत कुतुब शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ी प्यारी बात कही अपनी तफसीर में कि क़ारिए कुरान को जब वो ये आयतें पढ़ेगा, थोड़ी तवज्जो ऑनलाइन वालों की भी और यहाँ मौजूद हजरात की भी, अल्लाह सुब्हानहू तआला चाहते हैं कि 3 पोर्ट्रेट अपने जहन में नक्श करें, 3 पोर्ट्रेट बनाएं, उनको कलर दें। एक मिसाल के तौर पे 3 किस्म के इंसान के ग्रुप, एक एक इंसान एक एक बड़े ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे पसंद आई ये बात, इसलिए आपको सुना रहा हूँ कि क़ारिए कुरान अपने जहन में 3 पोर्ट्रेट समझते हैं ना। एक हर पोर्ट्रेट मुजस्सिम समझिए, एक रिप्रेजेंटेटिव, उसका एक नक्शा अल्लाह ने जहन में उतारने के लिए कहा कि देखो एक ग्रुप है। और ये ग्रुप तारीख के लिहाज से जाओ तो उस वक्त मक्के में भी था, मदीने में भी था, आज देखो तो आज भी दुनिया में है। क़यामत तक ऐसा ग्रुप दुनिया में ज़रूर रहेगा कि वो हर चीज़ को अल्लाह की मर्जी के ऊपर अपनी नफ्स को मारता रहेगा, बच बच के चलेगा, गुनाहों से बचेगा, और उसको मुत्तकी कहा गया। दूसरा ग्रुप वो टोटली काफिर है, उनको किसी चीज का आप कुछ भी सर पर अटक लो, उनके ऊपर कोई असर होने वाला नहीं है, वो ईमान लाने वाले नहीं है। और तीसरा ग्रुप बड़ा खतरनाक है, उसके ऊपर ये किसी तफसीर में नहीं है, लेकिन मुझे और आपको हक है कि हम अपने माहौल को और अपने आप के ऊपर उन आयतों को मुंतबिक करके देखें कि हम में इनमें से क्या क्वालिटीज हैं जो हमको मुनाफिक बना सकती हैं कभी भी, या कितने हमारे दुनिया में जो हम एक किरदार दुनिया के सामने, उसमें हमारे खौल और फेल में क्या फर्क है। अब आप दुनिया की हस्तियों के जो कोट्स हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ क्या कहता है इस्लाम के बारे में, सब नहीं पढ़ा होगा, सब नहीं सुना भी होगा, कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कहा अफसर?
गांधी ने क्या कहा, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा, और ऐसे बहुत से वो जो हिंदू पुजारी हैं या जो उनके प्रीचर्स हैं, वो बड़ी बड़ी नातें भी कहते हैं इस्लाम के बारे में, अल्लाह के बारे में भी बहुत बातें कहते हैं। लेकिन जब आप सब इन चीजों को समझते हैं तो फिर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह क्यों नहीं करते? बर्नार्ड शॉ ने क्या कहा? Islam is the best religion of the world, but Muslims are the worst nation of the world. उसको ऐसे लोगों से साबिक़ा पड़ा जिनका कौल और फेल एक जैसा कभी भी नहीं होता। इससे कल ही इंशाअल्लाह की बात हो रही थी। कौन सा इंशाअल्लाह? आने का इंशाअल्लाह, नहीं आने का इंशाअल्लाह। तो देखिए, ये जो हिस्सा ला रहा हूँ इसका किसी तफसीर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन थोड़ा खतरनाक है, थोड़ा खतरनाक है। इसका हक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे भी दिया है, आपको भी दिया है कि हम कुरान को सिर्फ तारीख़ी हवालों से मायने समझ के कुरान के हिस्से को पढ़ लिए, लेकिन दिल पे कोई असर नहीं हुआ, मुहासिबा नहीं किया, माहौल को नहीं देखा और हत्तल इम्कान माहौल को दुरुस्त करने की कोशिश नहीं किया, तो वो कुरान पढ़ के समझने का भी कोई मकसद पूरा नहीं हुआ। तो उसके जो तरीक़े बताए गए हैं, हिकमत कैसी होनी चाहिए, बात पहुंचाना कैसा चाहिए, किसी को ज़िद्दी नहीं बनाना चाहिए, पहले तो खुद नमूना बन के बताएं। ठीक है, तो भी बैठे बैठे शिकवा लिख दिया, क्या मिला? जेल में डाला तो कुफर का फतवा मिला, और क्या? काफिर, इकबाल काफिर। और फिर इतने दिल बर्दाश्त हुए कि मजबूरन जवाब शिकवा लिखना पड़ा। और जितने क्रिटिक्स हैं, अगर कोई अदब से वाकिफ है, अदब पढ़ता है, तो हर क्रिटिक ने यही कहा है कि जो जज्बा इकबाल का शिकवे में था, जवाब शिकवे में वो नहीं। वो जोर, वो जो ताकत उन्होंने शिकवे में लगाई थी, जो एक अंदरूनी कैफियत उनको उकसा रही थी शिकवा लिखने पे, जवाब शिकवा में नहीं है। वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें वो बात नहीं है। तो कह दिया वो साहब कुरान हो के मौजूद हुए जमाने में, और तुम जो है तारीख कुरान हो के। बहुत सी चीजें अल्लाह ने नवाज भी, वो भी उनको याद भी कर दिया कि वो तो ऐसे थे और तुम क्या हो। इसका हक पहुंचता है और इसके बगैर ये कोई तफसीर नहीं है। यहाँ तक हक हमको पहुंचता है कि हम जो कुछ पढ़े हैं उसको अपने माहौल पर, अपने घरों के ऊपर आजमा के देखें कि आज हम कितना पढ़ रहे हैं, उसका नतीजा क्या है, उसका जो रिजल्ट है वो हमको क्या मिल रहा है या नहीं। ये तदब्बुर का हक मुझे भी है, आपको भी है, हर मोमिन को जो कुरान पढ़ने वाला है। चलिए, अब उसके बाद की आयतें, पहली आयत तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि अलिफ लाम मीम हुरूफ मुक़त्तआत हैं। इसके बहुत सारे 90% मुफस्सिरीन ये कहते हैं कि इसके मायने किसी को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं बताए, लेकिन अल्लाह के रसूल को अल्लाह ने ज़रूर बताए होंगे, वरना ऐसी मुबहम बात कुरान में हो और आपको उसके मायने न मालूम। हज़रत इब्न अब्बास, अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने इसके कई माने भी बताए हैं। कहीं कोई कहता है अलिफ से अल्लाह, लाम से जिब्राइल, मीम से मोहम्मद। बहरहाल जो भी माने हैं, लेकिन एक माने जो हमको सही दिखते हैं आमतौर पे, तो उसको हम, जिस पे कोई काफिर या मक्के के अहले ज़बान कोई एतराज़ नहीं करे थे,
تو اس قسم کے الفاظ کلام سے پہلے بولے جاتے تھے، اٹینشن کو لوگوں کی حاصل کرنے کے لیے. اٹ واز اے کسٹم. اور ایک معنی ہے کہ یہ 14 ہیں، ان کے بغیر کوئی بامعنی کلمہ عربی کا نہیں بنتا جو حروف مقطعات میں آئے تھے. چلیے پھر یہاں سے 2 سے ایک پورٹریٹ بن رہا ہے کہ یہ کتاب تو ہے ہی ہے، اس میں ریب نہیں ہے، لیکن اس پر ہم ریب دیکھیں گے تو آج کسی سے بھی پوچھ لیجئے اسلام، چاہے وہ اسلامو فوبیا جسے کہتے ہیں، اسلام از اے ریلیجن آف ٹیررزم، کچھ نہیں تو اپنے پریسیڈنٹ سے پوچھ لیجئے جا کے. ان کے ذہن میں تو یہی بیٹھا ہوا ہے، اس میں کوئی اچھی بات ہے ہی نہیں، مارو، بما پھوڑو، خودکشی کر لو. یہی اسلام کو سمجھے نہیں سمجھے کہ ان کو اتنا ہی سمجھایا گیا. تو پھر تو ریب سے بھری ہوئی ہے کتاب. لیکن اس میں سے وہ جو پہلے کچھ چیزوں پہ ایمان لاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے 6 خصوصیات یہاں پر بتائے گئے، اس کو نام دیا گیا متقی کا. اور متقی کے لیے متقی نہیں ہے تو وضو کیوں کروں، نماز کیوں پڑھوں، روزہ کیوں رکھوں، حج پہ کیوں جاؤں، سچ کیوں بولوں، دوسرے کو دھوکہ کیوں نہیں دوں، میرا فائدہ ہو رہا ہے اس میں، اس کو بیوقوف کیوں نہیں بنا. ہزاروں سوال پیدا ہوں گے. آپ کا کیا جا رہا ہے، میرا فائدہ ہو رہا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ. تو 6 خصوصیات ابتدائی بنیادی وہ بلیف سے متعلق ہیں. ابھی تو پوری قرآن میں بھرے ہوئے ہیں ڈوز اینڈ ڈونٹ، کیا کیا خصوصیات ایک مومن کی ہونی چاہیے. تو ہدایت صرف اس کے لیے ہے جو اللہ پہ پہلے ایمان لائے گا، گناہ کو گناہ سمجھے گا، ثواب کو ثواب سمجھے گا، اللہ کون سی چیز کو پسند کرتا ہے، کون سی چیز کو ناپسند کرتا ہے. تو بنیادی اس کے جو 6 باتیں بتائی گئی ہیں کیا ہیں، یہاں پر آپ کے اسکرین پہ آ رہا ہے. غیب پہ ایمان لانا. اب غیب کیا ہے؟ یہی جو ہم نہیں دیکھے. جنت ہم کو نہیں معلوم کیسی ہے، جہنم بھی ہم کو نہیں معلوم کیسی ہے، اعمال کون سی ترازو میں تولے جائیں گے وہ بھی نہیں معلوم ہم کو، وہ کتاب کیسی ہوگی، وہ چپ ہوگی یا پھر جو ہے باقاعدہ پرنٹڈ کتاب، واللہ عالم. غیب ہے، وہ ہمارے سیدھے ہاتھ میں بھی دی جائے گی، بائیں ہاتھ میں بھی دی جائے گی. تو یہ ساری چیزیں وہ جو ہونے والی ہیں، یہ قرآن کا بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ایک ایک چیز بتا دی جو ہونے والی، اس پہ ایمان لانا ہے. یہ ہوگا تو ہی اعمال درست ہوتے، ورنہ نہیں ہوتے. تو پہلی شرط کیا لگائی؟ دوسری شرط کیا لگائی؟ یہ تو اللہ سے جوڑنے والی ہے، یہ بالکل بنیادی چیز ہے، اس کو ترک کر دیا تو کافر ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس